Good morning, ma'am. Good morning. Am I audible? Yes, ma'am. Okay. So, yeah, now listen. Yesterday I told ki this chapter again, this topic again I will repeat. Is that clear? Yesterday I think the thing was not clear to you all. Was the topic clear to Good you? morning, ma'am. Good morning, very good morning. So now we are going to start the cell division again. Okay? How cell gets divided and how the growth and development takes place in multi-celled organism. Is that clear? So I think everyone, the term must be clear to you that mitosis and meiosis, two type of division. Is that clear? Mitosis, you just write down for your memory. Mitosis takes place in soma cell, somatic cell, because we have two type of cell in our body. One that is soma cell, somatic cell, that is helping for somatic division. ठीक है? Other is germ cell or blastogenic cell, that is responsible only for reproductive cell. Am I all clear to you? Because last time I am going to tell about all these events, how the cell divides. ठीक है? Is the term clear to you? Tell me yes. Ma'am, repeat again. Okay, I am repeating. Yes. Just see, if the question asks, what do you mean by cell division? ठीक है? तो you will say, इसका significance क्या है? What's its significance? Significance for growth and development.
हेलो हेलो Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये कनेक्ट नहीं हो पा रहा है बेटा इंटरनेट 1 मिनट जस्ट वेट Is it all clear? So now listen. Again, I am telling the same, repeating the same thing. If you wish, you can note it down. Significance of cell division. Write down. What is the significance of cell division? First point you will write. Yeah, are you noting down? First point you will write for growth and development in multi-celled organism. ठीक है? First point that is for growth and development in multi-celled organism. ठीक है? सबको पता है कि यूनिसेल्ड में there is no as such need because they have only one cell. So it is basically termed for the multi-celled organism. Then you write, we have two type of cell. First, soma cell. First is the soma cell. Second, that is germ cell. Is that clear? Soma cell you will write for body growth. Are you getting me? Yes, ma'am. Okay. Soma cell यहाँ एरो कर दो, लिख दो कि it is for body growth. इसको कहते हैं somatic division. Can you please repeat? Soma cell, we have two type of cell. First is soma cell and second is germ cell. Am I clear? Soma cell that refers to somatic division. Is that clear? That refers to somatic division. Responsible for growth and development in multi-celled organism. अब clear है? Germ cell. Soma cell. हाँ? Can you please repeat the soma cell? Yeah. Soma cell refers to somatic division. Am I clear? Refers Yes, ma'am. for somatic division. ठीक है? Responsible for, in same continuation you will write, responsible for growth and development of the body. Am I clear? Growth and development. Yes, ma'am. Okay. Now you write about this thing, germ cell. इसको blastogenic cell भी कहते हैं. You can write giving the oblique germ cell or blastogenic cell. ठीक है? Responsible for growth in reproductive cell. Now it's clear, or should I repeat once again? It is confined to or concerned to the reproductive cell, responsible for growth in reproductive cell. Is it all clear? Tell me, respond me, yes or no. I think there should not No, be Yes, a ma'am. requirement for repeating Yes, it ma'am. again. Yes, ma'am. Okay. Now just see. It was the significance. ठीक है? And then you write, that is very specific point for cell division, that how you will define it. So in definition you will write, लिख लो इसको, in cell division we only observe, in cell division we only observe
the behavioral attitude of the chromosome. Am I clear again? The behavioral attitude of chromosome. ठीक है? Cell division is what? It is only the behavioral attitude of chromosome in different stages. Am I clear? Tell me. Yes, ma'am. Okay, very nice. Now see beta what happens. Actually, just see. This is cell, animal cell. This is nucleus. Everyone knows. ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ठीक है, परफोरेटेड इन नेचर, जिसको न्यूक्लियोपोर कहते हैं. एंड जस्ट आउटसाइड दिस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये छोटा सा स्ट्रक्चर है, ठीक है. इज इट विजिबल? इसको कहते हैं सेंट्रोसोम. इट इज टोल्ड एज सेंट्रोसोम, ठीक है. इट इज inactive all the way except approaching the cell division process. Means when cell prepare itself to go for further cell division, then only this structure becomes active. How active? Now see. Just see. This centrosome, it is having two type of small rounded shaped body, and that is centriole. ठीक है? This centriole, one fixed to the north pole and next goes to the south. So how it will move? It will move through formation of spindle fiber. Then it goes to this end, इसको कहते हैं साउथ पोल. यहाँ तक क्लियर है सबको? Is that clear or not? मैम ये स्पेंडल फाइबर से मूव करता है, मतलब मैम ये चीज समझ नहीं आएगी. स्पेंडल फाइबर से कैसे मूव करता है? ये सेंट्रोसोम और मैम समझ में स्पिंडल आया? फाइबर मैम कैसा, मतलब क्या, किस चीज से बना हुआ होता है मैम? Just listen. ये जो सेंट्रोसोम था, it is when it active, तो क्या होता है, इसके पास दो स्मॉल बॉडी है, सेंट्रियोल, ठीक है. वन रिमेन फिक्स टू द नॉर्थ पोल और इसके पास स्पिंडल फाइबर होता है, एस्ट्रल रेज, ठीक है, दैट इज इन कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म एंड इट बिकम्स एक्टिव व्हेन सेल इज रेडी टू डिवाइड. और जैसे सेल डिवीजन के लिए प्रिपेयर करता है अपने आप को, वो स्टेज अभी हम बताएंगे इसके बाद, अपने आप को प्रिपेयर करता है, इमीडिएटली वो स्पिंडल फाइबर को रेडिएट आउट करता है, ठीक है. स्पिंडल फाइबर को रेडिएट आउट करता है, एक्सपैंड करता है. क्यों करता है? पहला वर्क इसका है, फर्स्ट जॉब, another centriole it has to take to the next pole. समझ में आया? Is it all clear? Ma'am, means spindle fiber act as appendages for a centriole. Appendages कह सकते हो, but not the actual terms you are using here. Appendages means like the insects having the legs, wings, other things also. It has the just structure, वो रेज के जैसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, दैट इज वेरी फोर्सेबल. और व्हेन इट कम्स आउट, तो ये स्पिंडल फाइबर, जिसको एस्ट्रल, इसीलिए इसको एस्ट्रल रेज कहते हैं, और दैट टेक्स दिस टू द साउथ पोल. समझ में आया? इज दैट क्लियर?
और मैम ये Yes, ma'am. एक्टिव हाँ एक्टिव रहता है कि नहीं मैम, वो बता रहे थे आप, मैम समझ नहीं आया। क्या क्या बोलो, फिर से बोलो। मैम वो जब सेल डिवीजन होने का टाइम होता है तभी एक्टिव रहता है क्या? तभी एक्टिव होता है। अब वो कब होता है, कैसे होता है? सपोज तुमने अगर खाना नहीं खाया 5 days 7 days तक, तो विल यू गेट एनर्जी टू मूव इवन, टू discharge any your metabolic functions or any other job? Can you do it? नहीं ना? Tell me yes or no. नो मैम। हाँ, तो ये सेल डिवीजन के पहले वन स्टेज इज देयर जिसको कहते हैं प्रिपरेटरी फेज, और उसका नाम होता है, लिख लेना, इंटरफेज। ठीक है, दिस इज इंटरफेज। और ये इंटरफेज को देखोगे तो ऐसा डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, ये हो गया G1 फेज, ये हो गया दैट इज S फेज, एंड दिस इज G2 फेज, और ये हो गया M फेज। यू कैन नोट इट डाउन। G1 मतलब ग्रोथ 1 फेज, S means super coiling phase, G2 means advanced growth stage, M means either mitosis or meiosis। ये समझ में आया? इसलिए इस हम S का क्या इंटरफेज था? को, हम S फेज मतलब यस मतलब सुपर क्वाइलिंग। अब कहोगे सुपर क्वाइलिंग क्या है? जस्ट रिकॉल द स्ट्रक्चर ऑफ हम न्यूक्लियस। क्रोमैटिन क्रोमोसोम बन जाता है। वेरी नाइस। क्रोमेटिन क्या होता है? फाइबर्स के जैसा। ये याद है स्ट्रक्चर, इस टाइप का क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, जस्ट गिविंग द अपीयरेंस ऑफ पूल बॉल। ठीक है, और वो क्या होता है? वो कंडेंस्ड होता है। प्रिपरेटरी फेज इसीलिए इसको कहते हैं। इट प्रिपेयर्स इटसेल्फ टू गो फॉर फर्दर सेल डिवीजन। ठीक है, तो जैसे एक थ्रेड ले लो और दोनों एंड से उसको रोल करो, तो देखोगे कि वन टाइम, सर्टेनली इट विल टेक सम टाइम, वन टाइम विल कम कि वो जो इतना बड़ा थ्रेड था वो बिल्कुल यहाँ तक आ गया होता है, और वो बिल्कुल थिकन हो जाएगा इन कंपैरिजन टू द Yes, ma'am. फर्स्ट स्टेज। तो बस वही स्ट्रक्चर समझ लो कि सुपर क्वाइलिंग मीन्स द क्रोमेटिन फाइबर गेट्स कंडेंस्ड एंड टेकिंग द शेप ऑफ क्रोमोसोम। हमने न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर में भी स्लाइटली बताया था। आर यू रिकॉलिंग? Yes, ma'am. तो ये है सुपर क्वाइलिंग। कंडेंसेशन प्रोसेस इज हियर। Growth 2 means now the shape of chromosome has been quite appeared, and then mitosis start. Mitosis जो अभी हम बताने जा रहे थे, is that clear? तो ये इंटरफेज को प्रिपरेटरी फेज भी कहते हैं और रेस्टिंग पीरियड भी कहते हैं, बट सेल नेवर टेक्स रेस्ट, इट प्रिपेयर्स इटसेल्फ to go for further cell division. Am I clear? Is that clear? Yes, ma'am. तो Yes, उसी ma'am. वक्त ये अदरवाइज ये इनर्ट होता है, बताया ना कि सेंट्रोसोम इट इज ऑल इनर्ट अनलेस द सेल इज नॉट रेडी टू डिवाइड। तो व्हेन इट बिकम्स रेडी, फर्स्ट इट विल गो टू द इंटरफेज टू प्रिपेयर इटसेल्फ टू गो फॉर फर्दर सेल डिवीजन। कैसे होता है? इफ I take the surprise test without asking you, without any pre-information, तो क्या होता है? कुछ बच्चों को छोड़ के who are in regular touch with their studies, तो रेस्ट को क्या होता है? They get shocked कि what I will write, I'm not prepared it myself, होता है ना? तो just like that, to go for further cell division, cell first goes to this phase, interphase or preparatory phase
और रेस्टिंग पीरियड. इज दैट क्लियर? तो आफ्टर गोइंग, Yes, ma'am. और कभी कभी Yes, ऐसा ma'am. भी होता है, हमने एक एग्जाम्पल बताया था. सपोज यू आर ऑलवेज हैविंग द ब्रेक पीरियड 3 और 4 पीरियड के बाद फॉर 10 मिनट्स, 15 मिनट्स और 20 मिनट्स. ठीक है, व्हाट यू डू, you refresh your mind either by taking something or by playing or by running, whatever you like you do. Why? Because you have to continue for further 3 or 4 period. Otherwise, if that is not privilege, then what will happen? You will feel bored. Class will be monotonous. होगा ना? And you will be exhausted completely after hearing number of lectures from the teachers. होगा ना? तो वैसे सेल में भी है. बस just take the example with that. And वैसे सेल में है. कभी कभी ऐसा होता है कि माइटोसिस और मियोसिस के बीच में, या दो मियोसिस इज ऑफ 2 स्टेज 1 and 2. तो 1 और 2 के बीच में कितनी बार ऐसा होता है कि सेल नॉट लाइक्स टू गो टू द इंटरफेज, इट डायरेक्टली गोज टू फ्रॉम मियोसिस 1 टू मियोसिस 2. ठीक है, इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. तो बेसिक मैम रीजन, माइटोसिस एक बार बता देंगी? माइटोसिस, यस मैम. ओके, दैट आई एम गोइंग टू टेल. ये समझ में आया सबको कि why this interphase is required? And your question was कि how this spindle fiber, from where it has come. यही था ना कि कैसे. Yes, इसमें- ma'am. हाँ, Yes, किसी ने ma'am. कहा कि appendages है. Certainly, just like it is doing appendages. इसके पास कोई हाथ पैर तो है नहीं. How it will move? तो जैसे ही ये, चूंकि नाउ सेल इज रेडी टू डिवाइड, तो ये जो प्रिपरेटरी फेज में कंडेंसेशन हो रहा था, दैट इज फॉर व्हाट? ये स्पिंडल फाइबर जो उसके पास ये कैपेसिटी है, दे आर कैपेबल टू रिट्रैक्ट दिस स्पिंडल फाइबर. एस्ट्रल रेज, इसीलिए इसको रेज कहा गया है. देख रहे हो स्ट्रक्चर? इट इज जस्ट गिविंग द शेप ऑफ रेज. सो जैसे ही ये रेडिएट आउट हुआ टू सेंट्रियोल बॉडी, अदर गोज विद द हेल्प ऑफ, ये स्पिंडल फाइबर फुली फॉर्म, और ये फॉर्म हुआ. तो पहला, इफ द क्वेश्चन आस्क कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्पिंडल फाइबर, व्हाट यू विल टेल? फर्स्ट पर्पस, टू टेक द अदर सेंट्रियोल to the next pole, that is south pole. ठीक है, and other function is what? To bind with the chromosome. अब क्रोमोसोम का शेप क्या हो गया? ऐसा हो गया. ये सेंट्रोमियर है, 2 आर्म्स है, that is chromatid. तो इसका काम क्या है? सेकेंड वर्क इज what? ये इसको बाइंड करेगा. ठीक है, because it has to go to the number of steps for complete division of cell in 2 daughter cells. ठीक है, समझ में आया? Am I clear? यस मैम. Yes, ma'am. Okay. यस तो मैम. अब देखो बेटा, ये जो माइटोसिस है, अब ये माइटोसिस, इसका स्टेप्स होता है. फर्स्ट लिख लो इसको, प्रोफेज. ठीक है, सेकेंड मेटाफेज, थर्ड Anaphase. हाँ, एनाफेज, फोर्थ टीलोफेज, एंड लास्ट इज डाइकाइनेसिस. ये स्टेप्स है, और मियोसिस में भी यही स्टेप होगा. डिफरेंस क्या होगा? प्रोफेज 1, 2, 3 ऐसे करके. ठीक है, ये सारे में अब फिफ्थ वाला स्टेप क्या लिखी है?
क्या? हाँ यस मैम, Fifth फिफ्थ वाला वाला। step. हाँ बोल दे रहे हैं. प्रोफेज स्पेलिंग क्लियर है? डोंट राइट Yes, Yes, डाउन ma'am. द स्पेलिंग. हाँ. सेकंड इज मेटाफेज. Am I clear? Third, Yes, ma'am. anaphase, ANAPHASE, anaphase. Next, telophase, and last, dikinesis. Last is dikinesis. Am I clear? समझ में आया सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, very nice. अब देखो, it will be very interesting if we will concentrate here. अब देखो, बहुत सारे बुक्स में देखोगे अर्ली प्रोफेज, लेट प्रोफेज, अर्ली मेटाफेज, लेट मेटाफेज. तो ये एकदम स्टेप वाइज है. यू कैन राइट ऑल्सो टू दैट टर्म्स. ठीक है? तो प्रो तो ऐसे ही है, अर्लियर फर्स्ट स्टेज, उसमें भी अर्ली प्रोफेज मींस इनिशियल स्टेज. अब देखो इनिशियल स्टेज का क्रोमोसोम कैसा होता है, दिख रहा है? एकदम Yes, ma'am. उलझे हुए ऊल बॉल की हो गया तरह. मैम. ठीक है? In the form of chromatin. हाँ, क्रोमैटिड्स. ठीक है? तो ये क्या होगा, इसको हम लिख सकते हैं अर्ली प्रोफेज. ठीक है? मतलब सेल डिवीजन का बस जस्ट इनिशियल पॉइंट. Am I clear? अब देखो, अब इसको कह सकते हो लेट प्रोफेज में. अब क्या स्थिति हो गया? दिख रहा है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. देखो. Yes, ma'am. ओके. मैम देखो, इकट्ठे हो गए हाँ. सारे. देखो बेटा, ये क्रोमेटिन फाइबर के फॉर्म में था. यहाँ क्या आ गया? क्रोमोसोम का थोड़ा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हुआ, बट नॉट एग्जैक्ट क्लियर. ठीक है? और दो चीज हमेशा ध्यान रखोगे, वो क्या है? फर्स्ट, जैसे सेल डिवीजन स्टार्ट होता है, प्रोफेज, अर्ली प्रोफेज के बाद का जो फेज है, लेट प्रोफेज जिसको हम कहेंगे, वहां क्या होगा कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन starts disappearing. You must write it. Nuclear membrane starts disappearing. And second, nucleolus also starts disappearing. Am I clear? Yes, ma'am. ठीक है? चूंकि कैरियोकाइनेसिस फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, हमेशा इसको याद रखोगे. तो पहले क्या होगा, ये सारा चीज, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है. ठीक है? बिकॉज फर्स्ट न्यूक्लियस विल डिवाइड, देन फॉलोड बाय डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म. तो न्यूक्लियर डिवीजन के लिए ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है एट द फर्स्ट हैंड, इट गेट्स डिसअपियर. न्यूक्लियोलस ऑल्सो स्टार्ट्स डिसअपियरिंग. किसमें? लेट प्रोफेज में. लेकिन वही जब मेटाफेज आएगा तो कंप्लीटली डिसअपियर. समझ में आया? अब देखो, ये जो स्पेंडल फाइबर हमने बनाया था, एक सेंट्रियोल यहाँ, एक साउथ पोल पे, इसका काम क्या होगा? ये क्रोमोसोम को बाइंड करेगा. ठीक है? क्रोमोसोम को बाइंड किया एंड दे टेक this one to this pole and this one to this pole. Equal and opposite force exerted. ठीक है? क्या होगा? इसके कारण ये complete, देखो, it will divide exactly from the middle. Is that all clear? Yes, ma'am. हाँ. It will exactly divide from middle. तो ये middle से divide होगा. ठीक से देखना. और ये क्या करता है? दैट इज वेरी सिग्निफिकेंट पॉइंट. यहाँ पे माइटोसिस में सेंट्रोमियर ऑल्सो
gets divided along with chromatid. ठीक है, अब ये देखो स्थिति क्या हो गया, ऐसे हुआ, ये डिवीजन हो गया क्रोमेटिड्स में, तो इट विल बी लुकिंग लाइक दिस वन. ठीक है, ये किस स्टेज का है, मेटाफेज. मेटाफेज में क्या होता है, ड्यू टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स exerted by the spindle fiber over chromosome, they arranged on the equatorial plane. बिल्कुल इक्वेटोरियल प्लेन पे अरेंज हो जाएगा. ठीक है, अब देखो कि स्टिल अब मेटाफेज में क्या होगा, कंप्लीट डिसअपियरेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस. जो लेट प्रोफेज में स्टार्ट किए थे डिसअपियर होना, मेटाफेज में कंप्लीट डिसअपियर. ठीक है, और दूसरा सिग्निफिकेंट पॉइंट क्या हुआ, ड्यू टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स exerted from both ends, chromosomes try to arrange, not try, they have arranged already on the equatorial plane. ठीक है, समझ में आया सबको? यस मैम. ओके, और मैम लास्ट वाला एक बार फिर बता दीजिए प्लीज. ये समझ में आया कि स्पेंडल फाइबर बाइंड्स फ्रॉम बोथ द एंड ऑन द क्रोमोसोम. ठीक है, यस मैम. उसके कारण क्या हुआ, क्रोमोसोम का स्प्लिटिंग हो गया along with सेंट्रोमियर. अब क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर ऐसे. ठीक है, तो ये कैसे है, दोनों साइड में इक्वेटोरियली अरेंज है. ठीक है, अब यस मैम. स्टिल स्पिंडल फाइबर भी दिख रहा है, अभी तक है ये मेटाफेज में भी, बट गिविंग स्टिल प्रेशर ऑन द क्रोमोसोम. तो उसके कारण क्या हुआ, ये क्रोमोसोम, चूंकि दोनों की इच्छा क्या है, ये चाहेगा अपने पोल पे ले जाना, ये चाहता है अपने पोल पे ले जाना क्रोमोसोम को आफ्टर इट्स स्प्लिटिंग along with centromere. ठीक है, तो उतना फोर्स एक्सर्टेड नहीं है, तो ऐसे होगा ना, ओवरलैप्ड आर्म्स, ओवरलैप्ड. ठीक है, और ये किसका है, स्टेज एनाफेज का. इज दैट क्लियर? लेकिन स्टिल प्रेशर इज एक्सर्टेड, बट जैसे नेक्स्ट स्टेज आ रहा है टीलो, दे हैव रिच टू द टू रिस्पेक्टिव पोल. अब देखो ऐसे रिस्पेक्टिव पोल पे ये दोनों क्रोमोसोम, स्प्लिटेड क्रोमोसोम, यहाँ क्या हो गया, दे हैव रिच टू द टू रिस्पेक्टिव पोल. इट्स क्लियर? टेल यस मी. मैम. ओके, अब जैसे ही ये क्रोमोसोम दोनों एंड पे आ गया, जो स्ट्रक्चर डिसअपियर हुआ था, व्हाट दैट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस, दे अपीयर्ड. फिर ये टीलोफेज में आ गया. ठीक है, अब ये टीलोफेज में आने के बाद न्यूक्लियर डिवीजन इज कंप्लीटेड. इज दैट क्लियर? नाउ व्हाट इज लेफ्ट, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म. देखो यहाँ एनिमल सेल में कैसे होगा, कल हमने बताया था, फरो फॉर्मेशन, इनवेजिनेशन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, और फिर ये धीरे धीरे डिपेंड्स डाउन होगा, फाइनली डिवाइडेड द सेल इनटू टू डॉटर सेल. ठीक है, तो ये जो साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा बाय फरो फॉर्मेशन इन एनिमल सेल, इसको कहते हैं डाइकाइनेसिस. जो लास्ट पॉइंट तुमने लिखा है, दैट इज डाइकाइनेसिस. ठीक है, और हम टेलोफेज में क्या हुआ, टेलोफेज में, टीलोफेज में, नॉट टेलो, टीलोफेज में ये जो क्रोमोसोम, डिपार्टेड क्रोमोसोम है, स्प्लिटेड क्रोमोसोम है, दे हैव रिच टू द टू रिस्पेक्टिव पोल एंड रीअपियरेंस, अपीयरेंस नहीं बोलोगे, रीअपियरेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस
again. समझ में आया? Yes, ma'am. It means nucleus division is completed, karyokinesis is completed. What is left? Cytokinesis. और एनिमल सेल में क्या होता है? विथ फरो फॉर्मेशन, इन्वेजिनेशन ऑफ द वॉल, और धीरे धीरे ये डिपेंड्स डाउन होगा, फाइनली डिवाइडिंग द सेल इन 2 डॉटर सेल. ठीक है? तो दिस इज द माइटोसिस. तो हमने कितनी बार क्लास में बोला होगा कि माइटोसिस मीन्स व्हाट? फॉर्मेशन ऑफ 2 डॉटर सेल. मियोसिस 4. तो in next class, if you want, I will tell how the 4 daughter cells in meiosis takes place. I think this topic will be clear to you. Yes, ma'am. Okay, very Yes, nice. ma'am. So in next class, we will be meeting with the same point, must be going to the meiosis, and I will tell how it is taking place in reproductive cell, what happens, how many daughter cells are formed. Is that clear? Now time is over, beta. Till then, bye, and meeting at the same time in next class.